just a thumbs up or hand raise will do if you are very slow in typing. That's great. Chaliye, we are carrying forward with what we call, and we only get the opportunity, I have told you this, that when we begin with our preparation cycle, I wanted to first make you understand the benefit that we have with geography as our optional. Yes, we all have decided it to be our optional. The second thing that you have to take into consideration is what we tried to take up, that Feynman's approach, the Venn diagram, which I was calling sunflower diagram. That geography is deriving its content matter precisely from every other known disciplines, and it is therefore, it is important for us to take into consideration, where do I draw the boundary line? So to understand that, you have to take into consideration some of the elementary things which are not defined or it is not written in your syllabus, but definitely is equally important or is significant for you to develop that geographical perspective. Rather than simplicity, I'll be dictating, I'll be writing few things, I want all of you to copy down. So complexity rather than simplicity results in evolution of landforms. I'm not going absolute with the language, but the ethos is the same. Discuss. अगर ये क्वेश्चन को हम अपना बेस लेकर आज की क्लास को शुरू करें, if I take the base of this particular previous year question and begin with our class today, I have to understand that this answer with this question will be attempted by an average thinking student. As what? So हम इसको थोड़ा सा shrink करते हैं. How the average thinking student will be dealing with this question? Average thinking student will say, इसको relate कर दो rejuvenation से. कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है, absolutely correct है. Rejuvenation goes with one of the very prominent scholars of physical geography with us. हम normally scholars के पूरे नाम का burden अपने ऊपर नहीं डालते. We just take their name as they are popularly known. Davis, Gilbert. But Gilbert हमारे syllabus में दो हैं, तो बहुत clearly पता होना चाहिए कि William Gilbert is very different than G.K. Gilbert. So when you have got scholars, because lately we have started experiencing the questions where examiner is specifying school of thought and their contribution. If I'm recalling it correct, it was in 2018 main paper that you had to write about subaerial denudational contribution by American scholars. आपने पूरी जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ ली, अमेरिकन स्कॉलर्स ही नहीं पता कौन कौन से थे, तो आंसर गया आपके हाथ से. जबकि आप अगर एक थोड़ा सा एफर्ट लेके नेशनैलिटी को पिकअप कर लो, देन यू आर इन द पोजीशन ऑफ हैंडलिंग द क्वेश्चन. So when we talk about certain scholars with repeated name, कहीं एक compulsion हो जाता है that we should be aware of कि ये दो अलग-अलग individuals हैं and दोनों का contribution बड़ा strong है. Right now we are concerned with G.K. Gilbert. G.K. Gilbert was American scholar and was senior to William Morris Davis, father of geomorphology. I am coming on slowly, steadily to it. Average answer writing student will say complexity is there in landform feature rather than simplicity, because landform can be subjected to rejuvenation. Rejuvenation एक बड़ा elaborate topic है, हम उधर details में भी जा नहीं रहे. लेकिन अगर आप थोड़ा सा above average सोचें, तो this basically is related to how do you introduce your answer makes a lot of difference. इंट्रोडक्शन का मतलब कोई जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा डेफिनेशन के साथ लिखना है, इसका तो कोई डेफिनेशन हो ही नहीं सकता. There cannot be any definition to it. So how will you justify that complexity is more common than simplicity? Think about it. Here you develop geography as an integrative discipline is chronology with chorology. I do consider time. Recalling? Yes or no? I do consider time. I am not ignorant of time. I do take that into consideration. So apply that and think about it. What is the age of planet Earth? Planet Earth has got age of 4,000 million years. We humans have appeared on the face of the earth some 10,000 years before present. Today when I go explore out map of world, I find so many relief features. These relief features are categorized as young, Himalayas, young fold mountain,
old, Aravalli is old fold mountain, ancient, this is not that commonly talked about. Chota Nagpur plateau is ancient plateau. I'm not going to the technical names of the geological time scale. Chota Nagpur will be Azoic, Appalachians are Paleozoic, and Himalayas are Cenozoic relief. So we learn that as we introduce ourselves to geomorphology. So I'm trying to learn genesis of landform features since the beginning of the Earth's crust. I have been on the face of the Earth for only last 10,000 years before present. Surface of the Earth is imprinted by so many episodes of landform features development. Will there not be complexity? Yes or no? So if I am writing this answer and straightforward jumping onto that complexity is equal to rejuvenation, I have not created a good answer. An examiner certainly will not give me marks. This can be the main body of the answer, but this cannot be the only answer. So how do you relate it? So that is where I am saying introduction based on chronology, that is geological history of planet Earth. Because what is geological history of planet Earth? My planet has been existing since last 4,000 million years. Since then till date there have been so many processes applicable in developing the different landform features, and these have imprinted multiple aspects of the relief on the face of the Earth. This will be your introduction and you need to add it. So I just point it as an additional point to it. It is one of the fundamental principles of geomorphology. It is one of the fundamental principles of geomorphology. You have started your answer to this particular question not giving rejuvenation the only priority. Your answer is automatically becoming foolproof. I'll make more sense as I further proceed with the study. So I take this previous year question in introducing you to our first formal lecture as a complete topic coverage in the class, and each of the expressions that will be discussed here will create the base not just for geomorphological study but also eventually physical settings of India. So every point, जैसे हम बार-बार term बोल रहे हैं rejuvenation, but we are not at the point of discussing rejuvenation in details right now. I simply take dictionary meaning. बता दो, मदद कर दो. Rejuvenation as dictionary meaning. What will be the meaning of the term rejuvenation? Come on, you can give me that. Rebirth, renewal, attainment of youth, something which is rejuvenated, re-attainment of youth. So are we not using the expressions like I am old relief? Old possibly because I was formed some in older time. If I am old, I am supposed to be low heighted. Yes, no? Come on, Aravalli, ध्यान से सुनना, बड़ा अच्छा example बता रहे. Aravallis are examples of old fold mountain. NCERT का expression है बहुत elementary. We are at elementary level right now. Aravallis are believed to be as mighty, mighty मतलब tall, as mighty as Himalayas once upon a time. Himalayas have average elevation of 6,000 meters. Tallest peak of Aravalli, Guru Shikhar, is not having height touching 2,000 meters. 1700 meter की height है Guru Shikhar की. Aravallis once upon a time was the tallest, was as tall as Himalayas. Now it is eroded. Means it has lost its height. Why it has lost its height? Because it has got eroded. I hope you are understanding. So if I am old, I should be low heighted. But if I am old and still tall, I am renewed. I am rejuvenated. I have been given re-attainment of youth. Are you understanding? That is called rejuvenation of topography. There are many complex things which are related to it. तो ये मेरा एक foundation है. हम इस पेज पर दोबारा से आएंगे. Complexity rather than simplicity will facilitate development of landform. Done. इसको हम कैसे जज करें? Because we want to be comfortable with fundamental principles of geomorphology, and as I come back to this page towards end of today's class, you will be in a ease position. अच्छा ये चीजें इस तरह से interrelate करके लिखी जाती हैं. And there is one more question that has been asked. At the appropriate time I'll be adding it. I'm not adding it right now. So
I'm moving further with our study and I'm writing it here. Geo, कल भी लिखा था ना, Eratosthenes, but now I'm taking it up as morphology. So geo definitely stands for earth and morphology stands for landscape features. So as you take landscape features into consideration, ये by default earth's crust से relate हो जाता है. I hope you are understanding. So what is geomorphology? Geomorphology is a study of landform features, landscape features. बड़े सारे नाम आते हैं इसके साथ. I can use the term relief to it, but I'll just be taking or I'm concentrating on the term landscape या landform. So let me write landform also. And when I take references of landform features or relief features as geomorphology, 99% of our syllabus of geomorphology is about endogenetic and exogenetic forces. Now when I say endogenetic and exogenetic, I definitely incorporate them into the dynamic equilibrium to each other. जैसे volcanism, think about volcanism. Magma have its source inside the earth. Now it is something which is niche, inside the earth. Magma coming out from the earth's interiors towards the surface will be developing landform feature, lava plateau of Maharashtra, Mount Fuji Shan of Japan. Which type of landform features they are? They are developed due to endogenic forces. Endo why? Because they originate inside the earth. And now my example again, Aravali. Aravali was formed when? Aravali technically, I'm going rounding off with my time gap. Paleozoic hai, so I can roughly begin its formation some 600 million years ago. And Himalayan formation is some 70 million years ago. Himalayas are called young fold mountains. और आप सबकी knowledge में है, just prior to the COVID times, Nepal attempted remeasurement of height of Mount Everest with the Chinese help, and we have somewhere re-established कि Mount Everest का height अब 8848 meters नहीं है, 8852 meters है. Mount Everest is still rising. What does that mean? हिमालय का formation process अभी तक खत्म नहीं हुआ है. Young fold mountain है, अभी भी it is still getting developed. Does that mean कि आप माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर पहुंच जाओ? बहुत मुश्किल है पहुंचना. हम पहुंच गए हाइपोथेटिकली और हम वहां पर ऐसे बैठ गए, तो हमें माउंट एवरेस्ट ऊंचा उठता हुआ दिखाई देगा? नेवर. Because these are slow processes which are called diastrophic processes. They take, NCERT का term है, they take millions of years to register certain imprint on the face of the earth. That is the reason when I try to learn geomorphology, I need to give recognition to these very slow processes that have been operational on the face of the earth since its origin. And added to it, you are developing something, you are endogenic, and I am cutting it down, I am exogenic. Simply take river. River is continuously cutting down the elevated feature. If I use the term from NCERT, NCERT gives you the term which says gradation. I am writing it here. अभी लग रहा है ना थोड़ा सा रैंडम, 2 मिनट का समय तो बिल्कुल सीक्वेंशियल हो जाएगा. I'll be dictating few things, I'll be writing some things, I'll be writing all the names of the scholars ताकि कहीं हम spelling mistakes ना करें. ध्यान से सुनना. Process of gradation, NCERT का definition ले रहे हैं. What is gradation? Gradation is continuous leveling process. Leveling करने के लिए 2 काम तो करने ही पड़ेंगे. You have to cut down Himalayas. Cutting down elevated features is called degradation. When you will cut down Himalayas, you will be generating huge load of broken rock material. For leveling, am I only required to cut down the elevated feature? No, I have to fill up the depressions. Cut down, fill up, then only it is coming out to be leveled. I hope you are understanding. So what is filling up? Aggradation, deposition.
You are cutting down at a point, you are filling up at the another point, there will be automatically a process called transportation. So think about it. River Ganga running from Uttarakhand right there to Bay of Bengal. Which type of processes River Ganga is engaged in? It is cutting down Himalayas, transporting the broken rock material, depositing it in Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, Bangladesh as flood plain, as delta plain, yes or no? So gradation is a continuous leveling process, and this continuous leveling process is involving degradation and aggradation. So I have to take into consideration for the geomorphological features, shrinking this right up as this, for geomorphic, that is landform features, I need to take into consideration endogenic, बड़ा इंटरेस्टिंग कैरी फॉरवर्ड रेफरेंस आएगा, एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस. अभी ज्यादा टर्म्स का बर्डन आपको नहीं दे रहे, जस्ट ब्रेक. दिस इज द टर्म रिटन इन आवर सिलेबस, फैक्टर्स लिखा हुआ है हमारे सिलेबस में. एंडो समथिंग विच इज इनसाइड, एक्सो समथिंग विच इज ऑन द सर्फेस. सो एंडोजेनिक, take one example, volcanism. Exogenic, take another example, river as sample case. And how long that these processes have been operational to create out relief feature. Planet Earth has got history of 4,000 million years. I hope you are getting it. So when I have to interpret the relief features of such long time with so much of overlap, I have to judge up the complexity. The study of geomorphology is contributed by certain important scholars. They are called historical benchmarks in the development of geomorphology. If I can encounter a question in examination that write contribution of American scholars in geomorphology, it was subaerial denudation. I'm purposefully not emphasizing on that term because it will take us to another technical details. I might encounter a question asking me to write about contribution of Sir Charles Lyell, Steno Nicholas, because I need to be aware of relative time as well. समझ में आ रहा है? So what we are trying to understand today, what is our formal heading of learning today? Our formal heading of learning today is, make that heading now. फंडामेंटल प्रिंसिपल्स. ये मेरे दो इंट्रोडक्टरी पेज हैं, इन पर थोड़ी देर बाद आते हैं. मेकअप दी हेडिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स. आई वांट टू राइट concepts. Fundamental principles, concepts of geomorphology. Fundamental principles or concepts of geomorphology. बहुत ध्यान से समझना क्लास, बहुत जरूरी चीज है, बहुत इवेंचुअली हेल्प करेगी हमारे स्टडी में. involving 3 chronological categories. Three chronological categories. 2 मिनट के लिए रुकिए, काफी लंबा स्टेटमेंट लिखवाया, समझ में आ गया. Geomorphology is a study of development of landforms. Landform development is studied under this discipline. By default, how this particular part of discipline has evolved in the contribution of large number of scholars. Their contribution can be graded chronologically into 3 categories. Ancient की इतनी strong requirement नहीं है. Reason, when I take reference of, अब इनका details बस एक 2 line, I am writing the names of the scholar and then I'll ask you to add that this is what you have to write. I do talk about Greek scholars, Roman scholars, Arab scholars in my preparation of geography syllabus. Only point is, it is part of our syllabus called Perspectives in Development of Human Geography. मतलब I need to take into consideration Greek, Roman and Arab scholars as how they have contributed to growth of human geography. That is the reason my syllabus don't give me compulsion to think about, talk about these scholars contributing to physical geography.
बट फिर भी एक बड़ा एलिमेंट्री से एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं, आप सब लोग कन्विंस हो गए। डेल्टा हम सब ने सुना हुआ है ना, द डिपॉजिट दैट रिवर डेवलप्स एट इट्स माउथ इज कॉल्ड डेल्टा। डेल्टा टर्म का जेनेसिस है इस शेप की वजह से। दिस इज द फोर्थ लेटर रिटन इन ग्रीक। ग्रीस जैसे आप कह रहे हो ए बी सी डी, so it is the fourth letter written in Greek literature and it is called delta and written like this. Greek scholars were the scholars who first noticed Nile delta. River Nile rises from Lake Victoria, largest freshwater lake of Africa, and develops its delta in Mediterranean Sea, politically belonging to Egypt. उसका शेप इतना क्लियर ट्रायंगुलर है, आज तो बहुत सारे नाम हम बोलते हैं, इट इज लोबेट डेल्टा, इट इज आर्क्यूएट डेल्टा, इट इज ट्रू डेल्टा। डेल्टा नेम क्यों आया? क्योंकि दिस शेप मैचेस अप विद दिस। मतलब एज एलिमेंट्री थिंग्स एज डेल्टा इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम ग्रीक। और कल ही आपको बताया था ना, इराटोस्थेनीज ग्रीक स्कॉलर है ना, जिन्होंने हमें ज्योग्राफी का जियो एंड ग्राफोज दिया। So we have many beginnings that can be taken up from the work of Greek scholars. बस उन्हीं को representation देने के लिए, ज्यादा कुछ नहीं। So 3 categories of chronological contribution is there. Category 1 is ancient. I am writing the names of the scholars. आप बस add कर लो इसको। Number 1 ancient. तीनों category को representation देने के लिए लिख रहे हैं। Aristotle, Strabo एंड अल मसूदी। बस एक रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए दे दिया। एरिस्टोटल, एंशियंट हिस्टोरिकल बेंचमार्क की बात कर रहे हैं, तो एरिस्टोटल किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ग्रीक। स्ट्राबो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रोमन। एंड अल मसूदी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अरब स्कूल। सो वी हैव गॉट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच वन ऑफ देम। क्या कंट्रीब्यूशन है? इट्स समथिंग विच इज टू इलाबोरेटली गेटिंग इनटू द फ्रैगमेंटेड डिटेल्स, वी आर नॉट टेकिंग दैट इनटू अकाउंट। हिस्टोरिकल बेंचमार्क, एंशियंट रिप्रेजेंटेशन पर्पस that I had the beginning of landform studies right there from. Greek scholars का contribution आप कब से trace करते हो? 3rd century BC. I hope you are understanding. So you have the beginning of study of landform from that time. So it is giving me that glimpse, sufficient enough. I am coming on to the classical phase. अब यहाँ से हमारा थोड़ा important series of name शुरू होता है. So what I do is I just readjust the page. नाम लिख रहे हैं, ध्यान से लिखते जाएंगे। मॉडर्न को रिमूव कर देते हैं, नेक्स्ट पेज पर लिख लेंगे ताकि यहाँ क्लासिकल के सारे नाम आ जाए। क्लासिकल विल इंक्लूड ए विलियम गिलबर्ट, बी सर चार्ल्स लिल। ये सब आते हैं हमारे स्टडी के डिटेल्स में। और नो, so William Gilbert goes with, I was writing it as Gilbert, क्योंकि 2 हैं हमारे सिलेबस में, इसलिए विलियम गिलबर्ट एंड जीके गिलबर्ट को बिल्कुल अलग अलग हैंडल करना बहुत जरूरी है। So William Gilbert, I have asked you to write with geomagnetism, and I was just asking you, all of you, to take into reference paleomagnetism as one of the evidences that we apply to study geomorphological study. अभी इसके आगे और कुछ नहीं। अब 2 नाम को साथ में लिखेंगे, सर चार्ल्स लिल एंड स्टेनो निकोलस। ये थोड़े से हिडन नेम हैं, but they are important, they are quite significant when it comes on to geomorphic or geomorphological study. Sir Charles Lyell और Steno Nicholas को we associate with which category of the work? Combine कर दो दोनों को, we learn them with relative time. ये हुआ आसान एक्सप्रेशन। थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट एक्सप्रेशन बनाए तो we associate them with प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिग्राफी। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल स्टडी है, जियोमॉर्फोलॉजी के बिगिनिंग में हम इस स्टडी को कंसिडर करते हैं, राइट। सो
Sir Charles Lyell and Steno Nicholas. I'll just be explaining few of the things. Note it down. Then I take reference of, I can write one name, but let us be aware of both the names. So D and E, इनको भी आप एक साथ cover up करके लिख सकते हो. It's Hutton and Playfair. हटन डोमिनेंटली है इसलिए स्ट्रेच एरो कर दिया. Uniformitarianism. Quickly write it and just give me go ahead. Geomorphology is a study of landform features. These landform features are studied today in the reference of certain principles, concepts. These concepts and the processes analysis have been contributed by some important scholars. We, in the beginning of our learning, can arrange them into defined chronological category. बिल्कुल minimum possible names पर रख रहे हैं. When I talk about classical contributors, I can see that they have contributed to something which has led to the formation processes of eventually built up geomorphological study. Uniformitarianism states what? Uniformitarianism states present is key to the past. अभी लिखने की जरूरत नहीं है इसलिए नहीं लिखवा रहे. We have to learn the fundamental concepts. What does that mean? सोच कर देखते हैं. Appalachians are old fold mountains of North America. Urals are old fold mountains of Eurasia. Politically majorly ये रशिया को belong करता है. Great Dividing Range is old fold mountain of Australia, as Aravallis are there with us. We have been there on the face of the earth for some 10,000 years. And these relief features were developed, they marked the beginning of their development some 600 million years ago. हमारे सामने तो नहीं बने. How do I explain their formation process? I explain their formation process by applying the approach that Playfair gave us. Present is key to the past because laws of nature don't change with time. What you are having, agar Himalayas have got folded strata, we can see it has been proven because India is compressing against Eurasia. तो जहां compression होगा वहां पर folding होगा. तो if Himalayas are getting developed due to compressional stress, Appalachian में भी folded strata है तो वो भी तो compression से ही बना होगा because laws of nature don't change with time. This is the crux of uniformitarianism given to us by Hutton. इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं अभी पहुंच रहे हैं वहां पर. अभी हम हिस्टोरिकल बेंचमार्क के साथ कुछ स्कॉलर्स को फेमिलियर करना चाहते हैं. Preceding that we have written two names. दोनों बहुत इलाबोरेट हैं. कम से कम एक हाफ ऑफ द लेक्चर जाता है टू अंडरस्टैंड रिलेटिव टाइम. ऑल ऑफ अस टॉक अबाउट, ऑल ऑफ अस एनसीईआरटी में चैप्टर दिया हुआ है अनकन्फॉर्मिटी में, बट नॉर्मली वी डोंट थिंक अबाउट अनकन्फॉर्मिटी दैट इजिली. कल भी आपको समझाया था विच आर द क्वेश्चंस दैट वी ज्योग्राफर्स आर कंसर्न्ड विद. बताओगे, याद कराओ. व्हाट आर द क्वेश्चंस वी ज्योग्राफर्स रिलेट आवरसेल्व्स टू? व्हाट? आगे बढ़ो. वेयर, हाउ, व्हाई. भाई व्हाट शायद जियोलॉजिस्ट भी कंसिडर कर लें. व्हाट आर हिमालयाज? यंग फोल्ड माउंटेन. बट जियोलॉजिस्ट का मेन फोकस क्या रहेगा? व्हाट दे आर मेड अप ऑफ. और हमारा प्रिंसिपल फोकस क्या रहेगा? हाउ दे वर मेड, बिकॉज वी आर मोर कंसर्न्ड विद प्रोसेस. बट एज एन इंटीग्रेटिव डिसिप्लिन, आर वी इग्नोरेंट अबाउट स्ट्रक्चर? नॉट एट ऑल. स्ट्रक्चर तो हमारे डोमेन में है ही. दैट स्ट्रक्चरल स्टडी गोज हेयर. प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रैटिग्राफी, ज्यादा डिटेल्स में नहीं ले जा रहे, सोच कर देखना, इसलिए वाला पॉइंट भी लिख दिया. रिलेटिव टाइम. एक तो होता है एब्सोल्यूट टाइम, एक होता है रिलेटिव. बड़े आसान एक्सप्रेशन के साथ समझा रहे हैं. आई एम ओल्डर देन यू एंड यंगर देन माई पेरेंट्स.
यस नो, दिस इज माई रिलेटिव एज। टोपोग्राफी के बिल्डिंग मटेरियल का भी तो कुछ रिलेटिव एज हो सकता है ना। दैट हैज बीन गिवन टू अस बाय सर चार्ल्स लिल एंड स्टेनो निकोलस, एंड दैट इज व्हाट वी स्टडी इन आवर स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। तो बड़े बिग पिलर्स हैं ये। दे गेट ओवरशैडोड बाय विलियम मोरिस डेविस, पेंक, एलसी किंग, बट दे आर देयर इन आवर सिलेबस एंड वी कैन नॉट अफोर्ड टू बी इग्नोरिंग देम। ठीक है, तो इनको हमने इंक्लूड कर दिया। इससे पहले विलियम गिलबर्ट लिखकर आपको समझा ही दिया विद दैट ब्रीफ इंटरप्शन इन बिटवीन। एंड व्हाट इज दैट विलियम गिलबर्ट वाज द स्कॉलर हु वेरी सक्सेसफुली इंटीग्रेटेड अ वेरी इलैबोरेट सब्जेक्ट ऑफ जियोलॉजी called geomagnetism into the geographical study. How it helps, why do we study magnetic property of planet Earth, how it is helping us in the relief feature, we'll be learning that eventually. ठीक है, अब इसी पेज को थोड़ा सा श्रिंक करते हैं, आते हैं मॉडर्न पिलर पर। नेम्स को रिड्यूस ही रख रहे हैं, ज्यादा लंबे चौड़े नाम की लिस्ट नहीं दे रहे आपको, बट इसका फायदा क्या होगा अभी आपको समझ में आता है। ओके, थोड़ा सा इधर, ताकि वर्चुअल क्लास स्टूडेंट्स को क्लियरली दिखाई दे। चलो अब बढ़ते हैं, एंड आई एम राइटिंग नंबर सी, मॉडर्न। अब इसको भी हमारे साथ साथ लिख लीजिए, स्कॉलर्स के नाम एंड डैश डाल के उनका कंट्रीब्यूशन, फिर फटाफट से हम उसके बारे में आपको समझा दें। मॉडर्न इनकॉर्पोरेट, ए विलियम मोरिस, नहीं इनसे पहले लिखेंगे गिलबर्ट, क्रोनोलॉजी को फॉलो करें। जी के गिलबर्ट, देन विलियम मोरिस डेविस, वॉल्टर पेंक, एलसी किंग। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट यहां पर आपको समझाने की कोशिश करेंगे, पेल्टियर। अब हम इनके कंट्रीब्यूशंस को ऐड ऑन कर देते हैं। वर्चुअल क्लास आई एम पर्पसफुली हाइडिंग द क्लासिकल ब्लॉक, ताकि हम लिख दें, उसके बाद फिर हम श्रिंक कर देंगे तो आपको सब कुछ दिखने लगेगा, सो दैट व्हाइल राइटिंग यू आर गेटिंग अ कंप्लीट व्यू। चलो अब हम आई एम राइटिंग देयर कंट्रीब्यूशन। सो गिलबर्ट वॉज प्रोपाउंडर ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, Davis was propounder of normal cycle of erosion. Actually, he is, for his normal cycle of erosion, designated as father of geomorphology. Davis को आज भी अब father of geomorphology कहते हैं, in spite of the fact that his work has been put to an open-ended criticism. Walter Penck was propounder of morphological system. Only scholar who is not belonging to United States of America in this complete list. Penck was a German geomorphologist. बाकी सारे के सारे अमेरिकन है। अब इसमें पेल्टियर के बारे में एक और पॉइंट ऐड करेंगे। एलसी किंग was propounder of concept of pediplanation. अभी जा रहा है बाउंसर, जाने दो, नाम रहने दो अपने पास, अभी हम इसको समझा रहे हैं। एंड पेल्टियर was propounder of पेरीग्लेशियल साइकिल। लिख लो तो हमें गो अहेड दो, फिर हम आपको बता रहे हैं इसके बारे में। आई हैव रिस्ट्रिक्टेड द नेम्स टू ओनली द प्रिंसिपल वंस, क्योंकि कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट सा समझना है हमें। 10 प्रिंसिपल्स हैं जिसमें 6 तो एकदम बाय हार्ट करना है अभी के अभी, उसको छोड़ ही नहीं सकते। वेटिंग फॉर द गो अहेड। हो गया? अच्छा सोच कर देखो, आपको हमने हाइपोथेटिकली पहुंचा दिया किसी अननोन जगह पर। यू हैव बीन सेंड टू सम अननोन प्लेस विद द यूनिक रिलीफ फीचर। आपको हमने भेज दिया हिमालयन रीजन पर, आप पहुंच गए किसी भी एक हिमालयन डेस्टिनेशन पर। विल यू बी नोटिसिंग द फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ माउंटेन्स देयर? नहीं, वो तो आपको लगेगा स्टैटिक बने हुए बड़े माइटी, उनको कौन डिस्टर्ब कर सकता है। बट विल यू बी इन द पोजिशन ऑफ नोटिसिंग वर्किंग रिवर? दिखाई देगा ना कि रिवर भाग रही है, रिवर इज ट्रांसपोर्टिंग पेबल विद इट, yes or no? And when it is falling with great force as waterfall, it is actually exerting pressure on the ground lying pebbles, which can be subjected to breaking because of that.
यस नो? अभी शुरू में आपको क्या बताया? एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक। एंडोजेनेटिक क्या है? जो अर्थ के इंटीरियर्स में ओरिजिनेट होते हैं। एक्सोजेनिक क्या है? जो अर्थ के सरफेस पर ओरिजिनेट हो रहे हैं। दोनों ही लैंडफॉर्म फीचर्स बनाते हैं, लेकिन विच इज मोर एविडेंट टाइप ऑफ वर्किंग फोर्सेस? कम ऑन, which will be more evident working forces? I see sea waves, surfing. sea waves देखा है ना? फिल्म में तो जरूरी देखा होगा, खुद कभी सी बीच पे नहीं गए तो। sea waves, surf, and then quietly retreats. उस रिट्रीट को क्या बोलते हैं? बैकवॉश। आप बार बार सर्फ करते हैं और उसके बाद बैकवॉश, सर्फिंग, बैकवॉश। आई कैन सी जब सी वेव सर्फ करेगा तो कोस्टल एरिया में मान लीजिए कोई माउंटेन है, तो उस सर्फिंग से उसने उस पर प्रेशर एग्जर्ट किया, जब वो रिट्रीट करेगा तो प्रेशर रिलीज करेगा। इस प्रोसेस में ये टूट भी तो सकता है। आई कैन सी सी वेव वर्किंग, आई कैन फील मूवमेंट ऑफ विंड, आई कैन सी ग्लेशियर मूविंग डाउन द स्लोप, आई कैन सी रनिंग वाटर, yes or no? But I don't see mountains getting built up. I can see volcano getting ejected. We all have experienced earthquake. So some of the endogenetic forces we do see. But it is not that we are talking about that slow process as mountain building to be effective. Why I am talking about that? Think about it. इसलिए लिस्ट क्रिएट करिए। मॉडर्न कंट्रीब्यूटर्स, विलियम मॉरिस डेविस का टाइम ऐड कर रहे हैं, अदरवाइज अभी हमें इतने टाइम के डिटेल्स में जाना नहीं है। 1885 was the year when William Morris Davis came up with his normal cycle of erosion. मतलब you are taking up the second half of 19th century. आप बिल्कुल मॉडर्न टाइम्स में आ चुके हो, और सारे के सारे स्कॉलर्स किसके बारे में बात कर रहे हैं? एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के बारे में। आई होप यू आर गेटिंग इट। आई विल बी वेरी रॉन्ग टॉकिंग अबाउट कि भाई एंडोजेनेटिक फोर्सेस के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। बड़ा ही पॉपुलर टॉपिक है जनरल स्टडीज में, पेपर में इसका बड़ा रिप्रेजेंटेशन आ गया है। कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी, एनसीईआरटी का ही मेंशन करते हैं। एल्फ्रेड वेगनर पब्लिश्ड हिज कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी इन 1912-15। 12 में एक रिसर्च पेपर था, 15 में कंप्लीट टेक्स्ट है, ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन। अगर आप कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी को भी लो, विच वॉज नॉट एक्चुअली गिविंग मी द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंडफॉर्म फीचर, तब भी आप बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी जा रहे हो। ट्रूली स्पीकिंग, विच वॉज द थियरी that helped us to understand endogenetic, the demarcated references of those endogenetic forces? It was plate tectonic theory. और plate tectonic theory कब publish हुई है? 1960s. आप डिफरेंस देख रहे हो? Almost of a century. Come on, it's a big difference. Are you getting it or not? क्या कहना चाह रहे हैं? Genesis of geomorphology. All the historical benchmark in the genesis of geomorphology have been essentially related to Krugs create कर रहे हैं। Ancient को हटा दो, वो हट भी गया हमारा ऑटोमेटिकली। Ancient को हटा दिया। Classical, modern. Classical has been more related to structure, magnetism, and modern has been more related to, come on, exogenetic forces. Why geomorphology marked up its beginning with exogenetic forces? Because exogenetic forces are more evident forces. और कहीं imprint of, are we aware of dark ages? Are we aware of dark ages? Europe entered dark age after the decline of Roman Empire. Dark ages in geography thankfully was not that elaborate. क्योंकि 8th century से 13th century AD तक the scholastic inquiry center shifted to Baghdad, जो हमने आपको अल मसूदी एक सैंपल एग्जाम्पल लिखवाया है। But the dark ages in Europe was for very long time. So 8th century से लेकर 15th century तक आप dark ages को जज करो। Christianity domain, it was being imposed that landform features are the outcome of catastrophic development. तो लैंडफॉर्म फीचर्स का कोई प्रोसेस नहीं होता, सडनली दे इवॉल्व और दे वर देयर फॉरएवर, दे वर नेवर रिक्वायर्ड टू बी डेवलप्ड और चेंज्ड। That kind of approach actually led to, when there was the beginning of great age of discovery, exploration, there was the questioning of that ideology, and that was the reason that exogenetic forces were more evident for us to prove no, they are active.
It cannot be that it has always been there. I can see that the things are getting eroded. So that also contributed, but that goes outside scientific fervor. आपको एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बोला था, मॉर्निंग सेशन में हमसे एक स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन पूछा, जो ह्यूमन ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है 12th स्टैंडर्ड की, उसका जो फर्स्ट चैप्टर के एंड में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, उसमें एक क्वेश्चन था, शी आस्क्ड मी, सो इट इज कमिंग अप इन माय माइंड, दैट क्वेश्चन वाज रीडिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्सेज ऑफ ज्योग्राफिकल स्टडीज, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, एंड ऑफ द चॉइसेस गिवन इट विल बी एपिक्स. एपिक क्या होता है? एपिक कुछ हिस्टोरिकल माइथोलॉजिकल राइटिंग होता है, और माइथोलॉजिकल या स्पिरिचुअल राइटिंग इज बेस्ड ऑन बिलीव, इट कैनॉट बी साइंटिफिक. So Christianity imposed domain ki bhai all, it was catastrophic genesis of landform feature was a belief. It could never be scientifically proven. And that was the reason when the great age of synthesis marked up its beginning, scholars started looking in for how to prove that the things are dynamic, and exogenetic forces were much easier to be proven. So historical benchmark का रेपिटेशन दे रहे हैं, एकदम रिलैक्स करो, डीप ब्रेथ लो, रिपीट कर रहे हैं. दो चीजें तो आपके सामने लिखी हुई हैं. One was just the reference sake, so you just need to see it in your register page and notice it. Geomorphology have evolved in its present domain with at least 3 historical benchmark demarcated by we geographers today as ancient, represented by Greek scholar sample name Aristotle, Roman scholar sample name Strabo, and Arab scholar sample name Al-Masudi. Al-Masudi को par excellent physical geographer बोलते हैं. क्यों बोलते हैं धीरे धीरे समझेंगे, अभी नाम ही रहने दो. When I take classical phase, I identify the contributions in a big range of the work. Who are the scholars whom we have added, because they will be required for our study eventually. तो पहला नाम लिखवाया आपको विलियम गिलबर्ट, because he facilitated understanding of geomagnetism. Rather, I'll nowhere be wrong if I say William Gilbert was the scholar, repeating, William Gilbert was the scholar who very strongly facilitated the understanding of what? Facilitated the understanding of कि magnetic property of planet Earth से भी आप age and formation of relief को decipher कर सकते हो. कैसे करते हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट डोमेन ऑफ आवर सिलेबस है. लाइक हाउ पैलियोमैग्नेटिज्म रिवाइव्ड कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी. सो यू हैव टू टेक दैट इनटू अकाउंट. अभी हम वहां डिटेल्स में नहीं जा रहे. देन आई आस्क्ड यू टू राइट 2 पेयर्स ऑफ द स्कॉलर्स, क्योंकि ये दो चारों नाम आपके दिमाग में होने चाहिए. सर चार्ल्स लिल, स्टेनो निकोलस, दोनों का कंट्रीब्यूशन अल्टीमेटली कहां पर जाता है? Principles of stratigraphy, which is about relative time. सोच कर देखें, 4 fingers representing 4 layers of Earth's crust. 4 fingers representing 4 layers of the Earth's crust. ठीक है, सोच कर देखो. The lowest lying finger represents the oldest strata. समझ में आया? The lowest will be oldest. The topmost will be younger. This is one of the principles of relative time. Low-lying strata is always older than overlying strata. Oldest comparatively young, still younger, youngest. कोई difficulty थोड़ी है, आराम से समझ में आता है. So Sir Charles Lyell and Steno Nicholas gave us that kind of principles. उनका अलग reference है geography में, geomorphology में. Then I have asked you to take Hutton and Playfair. Hutton टर्म यूनिफॉर्मिटेरिज्म, जिसका easier version हम कहते हैं present is key to the past, so that is Playfair. You have taken these scholars as classical benchmark contributors to geomorphology. And finally we have taken modern benchmark contributors, and who are they? सब बड़े इंपॉर्टेंट, एकदम जिसको कहते हैं ना फ्लैग बियरर्स, each one of them. और ये सारे स्कॉलर्स, एलसी किंग का 2019 में क्वेश्चन पूछा था. एलसी किंग कंबाइंड द वर्क ऑफ डेविस, पेंक और एक नाम यहां मिसिंग है, वुड, विद हिज ओन वर्क टू डेवलप स्लोप स्टडीज. इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं एग्जामिनर आजकल. तो आपके लिए सिर्फ एलसी किंग का नॉलेज होना काफी नहीं है. एलसी किंग एंड डेविस, व्हाट एंड पेंक, व्हाट एंड हाउ दे हैव इंटीग्रेटेड द थिंग्स. सो दैट इंटीग्रेशन इज रिक्वायर्ड. अभी नहीं, अभी तो हम बिगिनिंग स्टेप पर है, अभी तो हम एक एक करके स्टेप लेंगे, देन वी विल बी इन द पोजीशन ऑफ इंटीग्रेटिंग. सो विलियम मोरिस डेविस, फादर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी. जी के गिलबर्ट, डायनामिक इक्विलिब्रियम. डेविस के सीनियर स्कॉलर हैं, बट
उनका कंट्रीब्यूशन रेजुवनेशन के साथ जा रहा है, अभी डिटेल्स में ले जा रहे हैं. पेंक, जर्मन स्कॉलर, वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिटिक ऑफ डेविस. इनका मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम एक मिस इंटरप्रेटेड कंसेप्ट कहा जाता है, बट पेंक इज अ प्रोमिनेंट कंट्रीब्यूटर टू जियोमॉर्फोलॉजी. L.C. King, I have told you, he was disciple of Davis and is one of the very prominent and popular contributors in geomorphology. Peltier के साथ थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है. Peltier is still not that popular scholar. हमारे सिलेबस में एक ह्यूमन जोग्राफर है, उनका नाम है ग्रिफिथ टेलर. Now, if I compare, there is no need to compare, but if I compare ग्रिफिथ टेलर जैसे रिनाउंड ह्यूमन जोग्राफर के साथ भी डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स में आपको डिफरेंट नेशनैलिटी पढ़ने के लिए मिलती है. कुछ टेक्स्ट बुक्स बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन स्कॉलर है, कुछ बोलते हैं अमेरिकन स्कॉलर है. बिल्कुल वही वाली कहानी पेल्टियर की है, थोड़ा सा ध्यान से समझकर देखना. ग्रिफिथ टेलर वॉज सिटीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, पेल्टियर वॉज अ फ्रेंच नेशनल. लेकिन ग्रिफिथ टेलर और पेल्टियर का जितना भी ज्योग्राफी में कंट्रीब्यूशन है, इट वॉज व्हेन दे वर सर्विंग at variable capacity in different geographic departments in United States of America. Are you getting it? इसलिए क्योंकि they are known for their contributions and their contributions were when they were serving in United States of America. इसलिए मुझे दिखता है कि they are being considered as American scholar. So Peltier के contribution को just like Griffith Taylor can safely be taken up as American contribution. ऐसा कोई difficulty नहीं है. इसलिए हमने कहा इस पूरी लिस्ट में Walter Penck is odd man out, बाकी सब के सब अमेरिकन स्कॉलर्स है, एंड यू कैन इजिली कोरिलेट देम इन देयर कंट्रीब्यूशन. आई थिंक दिस मच इज कंफर्टेबल. अब ये जो हमने स्टडी लिया, इसके बेसिस पर हमें कहां बढ़ना है, हमारे बोल्ड हेडिंग पर. व्हाट इज आवर बोल्ड हेडिंग? फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी. की एक्सप्रेशंस लिखते जाएंगे, ये आपका एक इंट्रोडक्टरी पॉइंट हो गया उसका, और आपको लिखवाने के बाद समझाएंगे विद एग्जांपल्स, एंड यू विल बी एब्सोल्युटली डन विद इट. चलिए, what I do, I add the page. Fundamental concept number 1. I'm dictating, you have to write. Fundamental concept number 1. Considered to be the basic concept. Considered to be the basic concept. It states that same processes and laws that operates, same processes and laws that operates on the earth's surface have operated throughout the geological history. Throughout the geological history. एक डैश डाल के लिख लो, दो with varying intensity. Varying intensity. Sounding like? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जल्दी पढ़ के बताओ. Sounding like. शाबाश. इनिशियल्स, वर्चुअल क्लास, पूरा टाइपिंग मत करो, जल्दी से. साउंडिंग लाइक. बाकी लोग, come on, all physical processes and laws that are operating on the face of the earth today have been operational throughout. Laws of nature don't change with time. Present is key to the past. What is that? Uniformitarianism, Hutton, लिख लो ब्रैकेट में Hutton.
यस नो, वर्चुअल क्लास स्टूडेंट्स, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। नहीं, आई डोंट अप्रिशिएट इट। हैंड, थम्स अप, हैंड रेज, समथिंग इज रिक्वायर्ड। ठीक है, चलिए अब देखो लिंक आना शुरू हो गया। अभी तक लग रहा था कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं थोड़ा सा समझ में आ रहा है। बिकॉज आई नो हटन, इट बिकम सो इजी फॉर मी टू जस्टिफाई। हाँ भाई, हटन, या ब्रैकेट में एक और स्कॉलर का नाम लिख सकते हैं ना, प्लेफेयर। So Hutton and Playfair contributed to this fundamental concept of geomorphology. अच्छा, एक चीज और बताएंगे, no point, यहां पर कोई कंपल्शन नहीं है that you have to write concept 1 as concept 1. आप कोई भी सीक्वेंस में उसको स्टडी करो, they are not labeled as this is concept 1. There are 10 concepts and I need to learn them, but I am selecting them in this sequence because it helps us to ease out something very important that we want to conclude. ठीक है, सेकंड लिखवाते हैं, फिर दोबारा से रिपीट करेंगे। और की टर्म्स हम यहां लिखते जा रहे हैं ताकि रिवीजन में आसानी रहे। कंसेप्ट नंबर 2, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। नंबर 2, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर is a dominant control factor in evolution of landforms. ब्रैकेट में लिख लो, and is reflected in them. And is reflected in them. Close the bracket. This has been the question in your UPSC main also. Geological structure. Structure is a dominant control factor in evolution of landform. समझने की कोशिश करो, थोड़ा इलाबोरेट कंसेप्ट है। इसी के टेल एंडर में 3 और कंसेप्ट आएंगे, सोच कर देखते हैं। I'll come back to this, या चलो इसी को थोड़ा सा श्रिंक कर देते हैं, बाद में वापस उसको रिमूव करके आपको शो करेंगे। ध्यान से देखना, हम सब एक ही एज के बने हुए रिलीफ फीचर हैं। चलो, बेस इंट्रोडक्शन ऑफ रिलीफ फीचर। Whenever I talk about relief feature, एक बड़ा इंपॉर्टेंट और ओवरलैपिंग टर्म आता है हमारे पास, विच इज कॉल्ड अपलैंड। अपलैंड इज कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स। एक को बोलते हैं टेबल लैंड टोपोग्राफी और एक को बोलते हैं कोनिकल टोपोग्राफी। टेबल लैंड टोपोग्राफी डायग्रामेटिकली ऐसा बना दो, बड़े आराम से समझ में आ रहा है ना हम क्या बोल रहे हैं, प्लाट्यू। So table land is the upland which doesn't have conical dimension to it. It's flat topped. कोई गारंटी नहीं है कि आप प्लाट्यू कहे जाओगे जब आपका हाइट कुछ सर्टन लेवल पर हो ना। तिब्बतन प्लाट्यू is a plateau which has got height of 4,800 meters, tallest plateau of the world. ठीक है, छोटा नागपुर प्लाट्यू is also a plateau which is rising some 700 meters from the mean sea level. तो मेरा हाइट नहीं डिसाइड करता whether I am called plateau or not. Plateau is upland. What is upland? Upland which abruptly rises compared to its surrounding. अगर वो फ्लैट टॉप्ड है तो अब आप उसको कहोगे प्लाट्यू, और अगर वो कोनिकल है, अब कोनिकल के बड़े सारे डायमेंशन आ गए। लेट दैट गो इन हाइडिंग, आई विल बी रिमूविंग इट। कोनिकल के कौन कौन से डायमेंशन? डायमेंशन 1 माउंट, डायमेंशन 2 माउंटेन या माउंटेन रेंज। यस ऑल ऑफ अस, कराकोरम रेंज। K2 इज माउंट, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। और इसी के साथ अगर ये बना दिया तो पैरेलल रनिंग रेंजेस बना दिया तो हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, तो क्या बन गया? कॉर्डिलेरास। Parallel running mountain ranges are called cordilleras. Are you understanding it? So, for me to qualify as upland, सोच कर देखना, सुंदरबंस आर प्लेन, सुना है सबने? कम ऑन, सुंदरबन सबने सुना हुआ है।
इंटरव्यू में तो पूछा गया था क्वेश्चन इस साल कि सुंदरबंस इनकॉर्पोरेट, व्हाई डू यू थिंक टाइगर लिव इन वाटर? हमारे एक स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू में. सो द आंसर दैट ही गेव वाज टाइगर डोंट लिव इन वाटर, रॉयल बंगाल टाइगर हैज इट्स अडोब इन द मार्शी लैंड ऑफ सुंदरबंस व्हिच इज इंटरटाइडल. सुंदरबंस एक प्लेन है, वो भी रिलीफ फीचर है. सुंदरबंस आर राइट देयर एट मीन सी लेवल. And I hope you have heard about Soda Plains, Aksai Chin. They are also plains, but they are at the height of 3,500 meters from the mean sea level. So for me to qualify as plain, it is not at which height I am located. Kashmir Valley is a plain. Plain is gently rolling. Upland is which is elevated from the surrounding. I hope you are understanding. So upland को कौन से दो categories में divide कर सकते हो? Plateaus and mountains. I think we have understood it. कुछ भी कॉपी डाउन करना चाहते हो तो कॉपी डाउन करते जाओ फटाफट, ठीक है. अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा इधर एडजस्ट करते हैं. हम इस एग्जाम्पल पर चले क्यों गए? हम इसलिए गए कि मान लीजिए कि हम सब किसी एक टाइम में बने हुए रिलीफ फीचर है. मान लीजिए हम सबके सब ओल्ड रिलीफ फीचर है, हम सबका जेनेसिस एक ही समय में हुआ. वी ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओल्ड रिलीफ एंड वी आर बिलोंगिंग टू सेम एज. आज जब हमें जज किया जाता है तो हम में से कुछ, इसलिए ये टर्म्स इंट्रोड्यूस कराए, हम में से कुछ अभी तक भी कोनिकली टॉल हैं, हम में से कुछ कोनिकल एलिमेंट खो चुके हैं, फ्लैट टॉप्ड हो गए हैं, और हम में से कुछ बिल्कुल इरोड होकर प्लेन पर पहुंच गए. वी आर ऑफ सेम एज, बट व्हाई इट इज सो दैट सम ऑफ अस आर स्टिल स्टैंडिंग टॉल एंड इज कॉल्ड माउंटेन ऑन द फेस ऑफ द अर्थ. मेरे ख्याल से बड़ा पॉपुलर आपके करंट अफेयर्स के डोमेन का नेम बता रहे हैं, हेमर्जले रेंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया. हेमर्जले रेंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया. आपको क्या करना है? हेमर्जले रेंज ऑस्ट्रेलिया हमेशा से जाना गया किसके लिए? आयरन ओर, गोल्ड. एंड नाउ व्हाई इट हैज बीन इन न्यूज़पेपर? बिकॉज इट हैज बीन प्रूवन विद वन ऑफ द रिचेस्ट एसेट्स ऑफ यूरेनियम. किस तरीके का माउंटेन है हेमर्जले? एंशियंट माउंटेन है, मतलब इट हैज बीन डेवलप्ड ओल्डर देन 600 मिलियन ईयर्स अगो. एंशियंट हो तो उसको तो इरोडेड हो जाना चाहिए ना. क्यों है वो अभी तक टॉल? आई एम मेड अप ऑफ मोर रेजिस्टेंट मटीरियल. कल की क्लास का स्टेटमेंट रिपीट कर रहे हैं. रिलीफ फीचर्स आर मेड अप ऑफ रॉक्स. Relief features are made up of rocks. Some rocks are more resistant and do not get eroded that easily. Some rocks are easily wearable. हम किसकी बात कर रहे हैं? Read the principle number 2 quickly. फिर हम भी बोलते हैं structure, that is geological structure, is a dominant control factor in evolution of landform and is reflected in them. Yes, no? समझ में आया? दोबारा से रिपीट करें, एकदम डीप ब्रेथ लो. स्कॉलर्स के नाम बताते जाना. स्ट्रक्चर के स्कॉलर का नाम अभी हम बता रहे हैं आपको. प्रिंसिपल नंबर 1, all the physical processes and laws that are operational on the face of the earth today have been operational throughout the geological history. They can vary in their intensity. आप सबने सुना है इंडिया was part of गोंडवाना लैंड. 2022 में जीएस में का क्वेश्चन भी है ये. इंडिया was part of गोंडवाना लैंड. That is, India was right there in south polar location. तो उस समय में इंडिया पर कौन सा एजेंट या प्रोसेस काम करता होगा? ग्लेशियर. आज इंडिया कहां पर है? ट्रॉपिकल लैटिट्यूड. ज्यादा टेक्निकलिटीज में मत जाओ. हमारा मेन लैंड 8 डिग्रीज नॉर्थ से 37 डिग्रीज नॉर्थ तक एक्सटेंड करता है. वी आर इन लोअर लैटिट्यूड. हिमालयाज को छोड़ दीजिए. फ्रॉम नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया टू प्लाट्यू इंटीरियर्स, कौन सा एजेंट है जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है आज की डेट में इंडिया में? रिवर्स. All the processes have been operational throughout, but they can vary in their intensity. आज की डेट में ग्लेशियल की इंटेंसिटी इंडिया में कहां रिस्ट्रिक्ट हो गई? लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर.
उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम हिमालयस और टू सम एक्सटेंशन अरुणाचल हिमालयस, बाकी कहीं तो ग्लेशियर है ही नहीं. Yes or no? I think it is comfortable. So all the processes that are operational on the face of the earth have been operational throughout, only that they can vary in its intensity. कौन सा स्कॉलर? हटन. हटन को कभी भी मत छोड़ना. प्ले फेयर कभी भूल भी जाओ तो इट्स ओके, बट आई एडवाइज नॉट टू फॉरगेट इट. यूनिफॉर्मिटेरिज्म. स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर हैज अ डोमिनेंट कंट्रोल इन द एवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म. समझ गए हम. अगर आई एज रिलीफ इज मेड अप ऑफ मोर रेजिस्टेंट मटीरियल, उल्टी कहानी कर लो. आई एम ओल्ड रिलीफ, यू आर यंग रिलीफ. अब हमारा एज डिफरेंट हो गया. आई एम ओल्ड रिलीफ, यू आर यंग रिलीफ. यू आर सपोज टू बी टॉलर देन मी, but you are eroded. I am still standing tall because you possibly are made up of, complete the statement. You possibly are made up of less resistant material. तो स्ट्रक्चर का तो इफेक्ट आ ही जाएगा. अब बहुत इंपॉर्टेंट चेंज होगा क्योंकि यहां से शुरू हो रहे हैं. फादर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी क्यों कहे जाते हैं फादर, समझ में आ रहा है. ध्यान से. डेविस. Here the scholar that you have to take into consideration is Davis. Why? बिकॉज डेविस का कंसेप्ट का क्रक्स छोड़ नहीं सकते, पढ़ना पड़ेगा. सेज हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, लिखते हुए आपको डिक्टेट करा रहे हैं. इसी प्रिंसिपल के साथ स्टार मार्क करके लिख लो, फिर ये फॉर्मूला कॉपी डाउन कर लेना. राइट इट डाउन. ब्रैकेट में लिख लो डेविस एंड देन राइट इट डाउन. लैंडस्केप इज फंक्शन ऑफ landscape is function of structure, underline कर लो, stages, underline कर लो, and processes. Structure, stages and processes. ब्रैकेट में लिख लो ये फॉर्मूला जो हमने बना दिया. L equals F ब्रैकेट SSP. डिसाइड करेगा आप जल्दी इरोड होगे कि नहीं. इफ यू विल गेट इरोडेड क्विकली, you will be an eroded or denuded relief. If you will be maintaining yourself, you will remain effective for a longer time. Structure as a dominant control factor in evolution of landform reflects it on the landform. वहीं पर आप वो differential erosion को associate कर सकते हैं. जैसे ही आप ये टर्म स्ट्रक्चर लेते हो, you relate it to one of the three determiners that Davis has propounded landscape to be the function of. So landscape is function of structure, is one of the fundamental concepts of geomorphology. तो स्ट्रक्चर हो गया. उसके बाद आता है प्रोसेस. तो प्रोसेस को हमने दो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के साथ रिलेट कर दिया. कौन कौन सा? जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस operational on the face of earth may vary in its intensity as determined by climate and biome. और दूसरा क्या? different geomorphic processes tends to develop different set of relief features or different assemblage of landform feature. ये दोनों ही प्रिंसिपल किसके साथ एसोसिएट हो गए? प्रोसेस. I as one process can vary in my intensity. You and I as two different processes will be developing two different type of assemblage of relief. एक एग्जाम्पल बताना चाहते हैं, ध्यान से सुनो सब लोग. पेज ही ऐड कर देते हैं. ये मेरा हिमालयाज है, खाली दो ही कोण बना रहे, ज्यादा नहीं. Snow line is identified. Snow line of Himalayas is identified at 4,500 meters. Snow line को कैसे डिफाइन करते हैं? The limit of perpetual snow. इसका मतलब स्नो लाइन के ओवर एंड अबव क्या होगा? स्नो फील्ड. स्नो फील्ड को कैसे डिफाइन करते हैं? That area where supply is more than, technical term, ablation. Precipitation is more than ablation. तो precipitation किस फॉर्म में हो रहा है? स्नोफॉल में हो रहा होगा.
स्नो व्हेन स्टार्ट्स गेटिंग एक्यूमुलेटेड लेयर बाय लेयर, तो अपने आप ही लोअर लाइंग लेयर ऑफ स्नो विल गेट क्रिस्टलाइन टू बिकम आइस. So snow field is where the snow gets accumulated, creating ice belts also. Once the accumulation is so much increased that now it cannot stop itself or can remain accumulated as angle of repose is surpassed. तो क्या होगा? They will start moving down slope. खाली दो ही arrow बना रहे हैं. And this movement down slope is called glacier. ग्लेशियर की इफेक्टिविटी तो यहां पर खत्म हो जाएगी ना. यहां किसकी इफेक्टिविटी होगी? यस और नो? तो व्हेन आई एम सेइंग प्रिंसिपल नंबर 5, प्रिंसिपल नंबर 5 या उससे पहले प्रिंसिपल नंबर 4 में हमने बताया ना असेंबलेज वाला. लेट मी ओपन दैट. ये रहा, unique landform features. Here it is. आज तो हमें बहुत ही गड़बड़ हो रही है. हमने पेजेस को बड़े इन ऑर्डरली सीक्वेंस पढ़ा रहे हैं, हमने खुद मिस ऑर्डर कर रखा है. हमने आपको बताया प्रोसेस, एवरी प्रोसेस टेंड्स टू डेवलप यूनिक फीचर एंड दैट एवरी एजेंट हैव गॉट वेरिंग इंटेंसिटी. आप इन दोनों को कंबाइन करके इस वाले डायग्राम पर जज करो. कैसे जज कर रहे हो? ध्यान से देखो. एट सर्टेन लेवल अनदर एजेंट इज वर्किंग एंड बियॉन्ड दैट अनदर एजेंट इज वर्किंग. विल इट नॉट गोइंग टू डेवलप अ यूनिक असेंबलेज ऑफ लैंडफॉर्म? So unique assemblage is not just the work of one agent versus the other. It can be combination. अभी आपसे सैंड ब्लास्टिंग इफेक्ट का एग्जांपल लिया. इमेजिन करो अरावली. अरावली इज अलाइंड लाइक दिस. अरावली का अलाइनमेंट इस तरीके से है इंडिया में, इसलिए अरावली के कौन से दो स्लोप्स कहे जाते हैं? वेस्टर्न एंड ईस्टर्न. हिमालयास का अलाइनमेंट कैसे है? ऐसे. इसलिए हिमालयास के कैसे स्लोप बताए जाते हैं? सदर्न एंड नदर्न. अरावली का वेस्टर्न एंड ईस्टर्न. सो अरावली के वेस्ट स्लोप पर कौन सा एजेंट काम कर रहा है? रिवर लूनी. ईस्ट स्लोप पर कौन सा एजेंट काम कर रहा है? रिवर बनास, ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल, ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा. सो बनास रिवर इज वर्किंग ऑन ईस्टर्न स्लोप, लूनी इज वर्किंग ऑन वेस्टर्न स्लोप. बिल्कुल सही. लेकिन वेस्टर्न स्लोप पर विंड भी तो वर्क कर रहा है, बिकॉज अरावली इज द बाउंड्री ऑफ ग्रेट इंडियन डेजर्ट. So when I am talking about assemblage of landform, I am actually taking into reference multiple agent because of multiple condition also. बात समझ में आई है? Going back, please be very cautious and pick up the things. 5 principles. Number 6 add करें, फिर उसके बाद repetition. 7, 8, 9, 10 तो एकदम namesake. Number 6, adding that and then we are proceeding further. मेरे ख्याल से आप लोग गेस कर लोगे क्या होना चाहिए नंबर 6 प्रिंसिपल. इंपॉर्टेंट है. अच्छा चलो हम क्वेश्चन चेंज करते हैं. हमने कहां से शुरुआत करी आज क्लास की? कॉम्प्लेक्सिटी रादर देन सिंप्लिसिटी मार्क्स द एवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म. आ गया प्रिंसिपल? लिख लो. कॉम्प्लेक्सिटी complexity of geomorphic evolution is more common than simplicity. लिख लिया? चलो, कॉम्प्लेक्सिटी क्यों ज्यादा कॉमन होगा? वाई आई हैव सेलेक्टेड इट टू बी 6th प्रिंसिपल इन आवर स्टडी. सोचकर देखना. वाई कॉम्प्लेक्सिटी विल बी केस?
हमने क्लास की शुरुआत करी ये कहते हुए दैट वी विल बी, आई होप आई रेडिली गो टू दैट पेज, खोल देते हैं वो पेज आपके लिए, ये रहा। चलो, हमने क्लास की शुरुआत करी इस पेज से। हमने कहा ये क्वेश्चन आया एग्जामिनेशन में, और एवरेज थिंकिंग स्टूडेंट, I have asked you to write, Komal, I am repeating, anyone who has missed it, please write it again, that complexity in geomorphic evolution, complexity in geomorphic evolution is more common than simplicity. चलो, हमने कहा था ना थोड़ी देर पहले ये ज्यादा समझ में नहीं आ रहा, अब आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आएगा। मुझे ये क्वेश्चन मिला एग्जामिनेशन में, और हमने उसके बारे में क्या सोच लिया कि भाई गिलबर्ट को ले लो, हमारा आंसर होना चाहिए गिलबर्ट। कैसे होना चाहिए अभी समझा रहे हैं। कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा एनलार्ज करना है, 5 कैटेगरीज ऑफ रिलीफ लिखवाएंगे। एवरेज थिंकिंग स्टूडेंट ये लिखेगा। हमें थोड़ा सा बियॉन्ड सोचना चाहिए, तो थोड़ा सा बियॉन्ड सोचने के लिए जो आपके 5 प्रिंसिपल्स बैकग्राउंड में हैं उनके बारे में सोचना शुरू करते हैं। Excuse me. First principle states, laws of nature don't change with time, but they can vary in their intensity. दूसरा प्रिंसिपल कह रहा है ये नंबर कंपलसरी नहीं है, हमने इस तरह से लर्न करा इसलिए हम रिपीट कर रहे हैं। दूसरा प्रिंसिपल कह रहा है स्ट्रक्चर इज अ डोमिनेंट कंट्रोल फैक्टर। थोड़ी देर के लिए यहीं रुकते हैं इन्हीं 2 प्रिंसिपल्स के साथ। डिफरेंट प्रोसेसेस working on the face of the earth, though is repetitive in nature but can vary in their intensity, will it not develop complexity of landform? Structure as a dominant control factor in evolution. I am ancient relief, I should be eroded, but I am still standing tall as a mountain. Have I not created complexity in a landform feature? बात समझ में आ रही है कि नहीं? Different agents work with varying intensity as regulated by climate and biome. Different agents are working with different assemblage of landform. ये क्या सारी चीजें complexity नहीं डेवलप कर रही, सब कर रही हैं। आ रही है बात समझ में, इसलिए लिखा था। And see this, here is our principles list. इस पेज को पता नहीं क्या हो गया, खुलने का नाम नहीं ले रहा, खुल गया। प्रोसेस, स्ट्रक्चर, इंटेंसिटी, यूनिक लैंडफॉर्म बाय डिफरेंट प्रोसेसेस, ऑर्डरली लैंडफॉर्म, ये सभी चीजें तो कॉम्प्लेक्सिटी बनाएंगी। अभी आपको एक डायग्राम बनाकर दिया, हाफ ऑफ माउंटेन इज बीन वर्कड अपॉन बाय ग्लेशियर, हाफ इज बीन वर्कड अपॉन बाय रिवर, विल इट नॉट बी क्रिएटिंग कॉम्प्लेक्सिटी? बनेगा आपका आंसर अबव एवरेज। आपको बुक से क्या मिला? आपको बुक से मिला लिस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स, आपको बुक से मिला डिविसियन कंसेप्ट, आपको बुक से मिला एलसी किंग, बट आपका आंसर आपके कॉम्प्रिहेंशन पर डिपेंड करता है। आई थिंक आई एम मेकिंग सेंस। इसी प्रिंसिपल को एड ऑन करें एक स्कॉलर के साथ, कंटिन्यू विद द सेम प्रिंसिपल। आई विल जस्ट श्रिंक द पेज अ बिट। क्रेडिटेड टू हॉरबर्ग, इसी प्रिंसिपल में लिख लो नेक्स्ट स्टेटमेंट बनाकर, क्रेडिटेड टू हॉरबर्ग 5 different types of landform features are distinguished to denote complexity. A, simple. B, monocyclic. C, compound. D,
poly or multi-cyclic, and E with a star mark, exhumed. exhumed थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है तो ब्रैकेट में इजियर वर्ड लिखवा देते हैं, buried, something which is buried. आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं इवैक्यूएशन, है ना? इवैक्यूएशन क्यों करते हैं? क्योंकि जितने ओल्डर टाइम में चलते चले जाओगे, इवन सिविलाइजेशंस आर बरीड, तो टोपोग्राफी भी तो कहीं ना कहीं बरीड हो सकती है, उनको बोलते हैं एक्सह्यूम्ड. पहले लिख लो, फिर हम आगे बता रहे हैं. अच्छा, ये हॉरबर्ग लिखा है इसलिए 5 लिख रहे हैं, अदरवाइज हमें अगर हॉरबर्ग को हटाकर एज जियोमॉर्फोलॉजिस्ट जज करना है कि भाई हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टोपोग्राफी, एंड दैट इज द रीजन आई हैव रिटन इट लाइक दिस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टोपोग्राफी वी नॉर्मली बिलीव इन. We normally believe in simple, that is monocyclic, compound, that is polycyclic or multicyclic, and exhumed. अब सोच कर देखो, what is monocyclic? ये हुआ ना, डेविस क्या बोल रहे हैं? After upliftment is over, down cutting begins and there will be the orderly development of the landform. शुरू में क्लास में आज बात करी ना रेजुवनेशन की. कौन गारंटी देगा कि जब तक आप हिमालयाज को लेवल आउट करोगे तब तक कोई रीअपलिफ्टमेंट ना हो जाए? हो सकता है ना? यस और नो? विल इट नॉट क्रिएट इंटरप्शन इन द सिंपल साइकिल? व्हाट टाइप ऑफ टोपोग्राफी इट विल बी डेवलपिंग? कंपाउंड और पॉलीसाइक्लिक, दैट इज rejuvenation. I hope you are understanding. So how many types of topographical reliefs we take up into consideration? एक होता है सिंपल, जो बिल्कुल ऑर्डरली सीक्वेंस में जाता है, जैसे डेविस बताते हैं हमें. दूसरा होता है कंपाउंड, जो हमें किसने बताया? गिलबर्ट. रेजुवनेटेड, क्योंकि भाई ऑन द फेस ऑफ द अर्थ नो वन, एंड इट्स नॉट जस्ट एंडोजेनिक, इट कैन बी आइसोस्टैटिक, इट कैन बी यूस्टैटिक. सोचकर देखते हैं ऐसे, अभी थोड़ी देर बाद आते हैं. प्लेस्टोसीन बताना है दूसरे प्रिंसिपल में. अगर हम सिर्फ टेक्टोनिक एंडोजेनिक की बात करें तो वी ऑल कैन अंडरस्टैंड दैट आई एज रिवर वाज एट द वर्ज ऑफ लेवलिंग इट आउट एंड यू एज एंडोजेनिक फोर्स हैव अगेन रीअपलिफ्टेड इट. सो ऑटोमेटिकली दैट रीअटेनमेंट ऑफ यूथ विल मार्क द फ्रेश बिगिनिंग ऑफ लेवलिंग टास्क. तो वो किस तरह का टोपोग्राफी हुआ? कंपाउंड विथ साइकिल, मल्टी साइकिल, सेकेंड साइकिल, पॉलीसाइकिल. So topography incorporate complexities as it can be polycyclic also. तो क्या complexity को सिर्फ compound या polycyclic के साथ ही associate करें? नहीं, आप उसको simple और monocyclic के साथ भी associate कर सकते हो. क्यों? Orderly landform is manipulated by different agents, similar agent with varying intensity, and the manipulation induced by structure. Yes or no? हमें कॉन्फिडेंट यस नहीं मिला भाई. समझ में आया कि नहीं? यस नो नहीं सुनाई दे रहा. इतनी तकलीफ, बोलो. हम बढ़ेंगे ही नहीं जब तक नहीं बोलोगे. यस और नो बताओ. जवाब नहीं आ रहा, यस नहीं बोला जा रहा इन लोगों से. वैभव, व्हाट शुड आई से? नो मतलब समझ में नहीं आया, दोबारा रिपीट करें. योर आंसर शुड बी यस है. आई हैव जस्ट सेड. अच्छा, ये वाला क्वेश्चन पूछा ना एग्जामिनेशन में, तो इसलिए यही क्वेश्चन का सैंपल लेकर चले और इस प्रिंसिपल को इसलिए नंबर 6 पर रखा. कॉम्प्लेक्सिटी रादर देन सिंप्लिसिटी मार्क्स द एवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म. अच्छा, बिल्कुल सही. complexity rather than simplicity marks the evolution of landform. हम हमेशा इसको किस टाइप ऑफ लैंडफॉर्म के साथ एसोसिएट कर सकते हैं? करते हैं कंपाउंड, पॉलीसाइक्लिक. इसलिए हमने बिगिनिंग में क्या लिखा? हर एवरेज थिंकिंग स्टूडेंट क्या कहेगा? राइट रेजुवनेशन इन दिस आंसर. एंड दैट इज नॉट रॉन्ग, दैट इज इनकम्प्लीट. दैट इज इनकम्प्लीट. Complexity is not just about rejuvenation. Complexity is not just about polycyclic. Complexity is also with simple and monocyclic. Why? Because topography is influenced by structure. Topography is influenced by
varying intensity of same process. Topography is influenced by variable processes working in different location or time. तो अपने आप ही तो कॉम्प्लेक्स फीचर बनेंगे, yes और no. और टोपोग्राफी को आप टाइम से तो अलूफ कर ही नहीं सकते. प्लैनेट अर्थ का लाइफ कितना पुराना है? 4000 मिलियन ईयर्स. Come on, I have got topography which is going back to 4000 million years. उस पर कितना massive imprint of endogenetic and exogenetic forces हुआ होगा? Will it not give me complexity? Of course it will give me. बन गया ना above average answer. जो आपके फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं, काउंटिंग में तो 10 हैं, लेकिन ये 6 जो हैं ये आपका क्रग्स क्रिएट करते हैं. अब मुझे कॉन्फिडेंटली बताओ, सारे प्रिंसिपल्स के बारे में एक बेस क्लियर हो गया? ये सब के सब डिटेल्स में आते हैं जब आप जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते हो. ये नहीं कह रहे कि यू आर डन विद इट. एंड ऑल दोज हु हैव डन, वर्चुअल क्लास में आप मेरे पास हैं कुछ स्टूडेंट, दोज हु हैव डन जियोमॉर्फोलॉजी, जस्ट ट्राई टू रिलेट इट विद इट. आप 2024 में जा रहे हो, आपके पास टाइम है, इन प्रिंसिपल्स के साथ ओवरलैप कर दो, डिविसियन कंसेप्ट को ओवरलैप कर दो, रेजुवनेशन को ओवरलैप कर दो, एंड इट इज डन परफेक्टली. सो बी वेरी क्लियर कि इन प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल ऐसा भी हो सकता है दैट आई एनकाउंटर अ क्वेश्चन व्हिच इज आस्किंग मी टू राइट अबाउट प्रिंसिपल्स. हाउ कैन आई रूल इट आउट? इट इज पॉसिबल, बट देन हाउ आई एम राइटिंग द आंसर टू दिस, दैट इज इंपॉर्टेंट. और प्रिंसिपल्स में से 2 क्वेश्चन हमारे से पूछे जा चुके हैं, स्ट्रक्चर एज अ डोमिनेंट कंट्रोल फैक्टर एंड कॉम्प्लेक्सिटी रादर देन सिंप्लिसिटी. और इनके आंसर लिखने में ये वाला इंटीग्रेशन चाहिए. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट 7, 8, 9, 10. नेम सेक है, बट क्योंकि वी हैव क्रिएटेड द हेडिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल. नेम सेक का मतलब ये नहीं है कि दे आर नॉट इंपॉर्टेंट, बट दे आर लेस यूटिलाइज्ड इन जियोमॉर्फोलॉजिकल स्टडी. एटलीस्ट एज पर आवर सिलेबस इट इज लेस यूटिलाइज्ड. सो फटाफट इनको लिखते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं. नंबर 7, geomorphic studies essentially relates to tertiary relief. That is young relief. Which represents limited part of total landform features. प्रिंसिपल में तो टर्शरी लिखा जाता है, और अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो मेरे ख्याल से आपने ये टर्म एनकाउंटर करा हुआ है, हिमालयाज आर टर्शरी माउंटेन. हमारे लिए अभी थोड़ा डिफिकल्ट है, वी डोंट नो जियोलॉजिकल टाइम स्केल, सो टर्शरी लिखवाकर जानबूझकर यंग लिखवा दिया बीच में. अब जरा मैप ऑफ इंडिया को इमेजिन करो. आई डोंट नो फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, कोई बात नहीं, जस्ट इमेजिन मैप ऑफ इंडिया. ऑन फिजिकल मैप ऑफ इंडिया आई कैन एटलीस्ट फाइंड 4 फिजिकल यूनिट्स: हिमालयाज, plains of India, plateau of India and islands of India. ठीक है, आसान. If I ask to take reference of the 7th largest country of world, our country, and take up the reference of its relief feature, without any doubt the dominating most seems to be Himalayas. But is Himalayas synonymous to India? नहीं. जरा प्रिंसिपल को पढ़ना. आई बात समझ में? अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन अपने आप से पूछते हैं, व्हाई जियोमॉर्फोलॉजी इज एसेंशियली कंसर्न्ड विद टर्शरी रिलीफ, यंग रिलीफ. सोचकर देखो दोबारा से, आई एम जस्ट राइटिंग इट, चाहेंगे तो रिमूव कर देंगे. टर्शरी रिलीफ को आप किसके साथ एसोसिएट कर रहे हो?
और टर्शरी से जितने भी ओल्ड चले गए, ओल्ड और एंशियंट, वो किस भी प्रोसेस से बने हो, आज तो वो किसका इम्प्रिंट दिखा रहे हैं? यस और नो? अरावली ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, बना होगा उसी तरीके से जैसे हिमालयाज बना था, पर क्या अरावली आज अपने हाइट और पीक्स के लिए जाना जाता है? नहीं. इट इज मोर नोन फॉर इट्स इरोडेड डायमेंशन. दिल्ली का रिज अरावली है, लगता ही नहीं कि ये माउंटेन कहलाता था एज माइटी एज हिमालयाज. इट एक्सटेंड्स टिल अहमदाबाद इन गुजरात, पर उसका रिकॉग्नाइजेबल हाइट तो मुझे खाली सिरोही डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में दिखता है, जहां पर यू हैव अबू हिल्स एंड गुरु शिखर. सो व्हेन आई टॉक अबाउट ओल्डर रिलीफ, हम कौन से प्रोसेस के पास चले जाते हैं? एक्सोजेनिक. और जब यंग रिलीफ की बात करें तो आप कौन से प्रोसेस को ज्यादा फोकस दे सकते हो? एंडोजेनिक. So think about it, and I'm repeating. What is principle number 7 is depicting? It depicts that geomorphology is essentially concerned with tertiary relief. However, they represent smaller part of the total landscape. आपको एक एग्जाम्पल बता दिया इंडिया का, और दूसरा कन्विंसिंग पॉइंट दिया कि टर्शरी मुझे कौन से प्रोसेस पर फोकस करने में मदद करता है? एंडोजेनिक. वहां एंडोजेनिक अभी भी एक्टिव है, यस और नो? और बाकी सारे फीचर्स किधर चले गए? दे आर मोर वर्कड अपॉन बाय लेवलर्स. आई थिंक दिस इज कंफर्टेबल. ये रिलेटेड टू टाइम हो गया. रिमूव करते हैं इसको, फटाफट से लिखो प्रिंसिपल नंबर 8. आसान आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं. This is also related to time. Proper interpretation. Proper interpretation of present relief features is not possible without understanding influence of geology and climate. ब्रैकेट में लिख लो, स्पेसिफिकली ड्यूरिंग प्लेस्टोसीन एपोक. Pleistocene epoch. I'll just explain. Number 9. ये 8 का ही एक्सटेंशन है, लिखने के बाद समझा रहे हैं. Number 9. Complete appreciation or understanding. Complete appreciation or understanding of world climate is necessary for the proper understanding of geomorphic processes. बिफोर आई एक्सप्लेन एनीथिंग, आप जरा ना प्रिंसिपल नंबर 8 और प्रिंसिपल नंबर 9 को एक बार रीड करो. उसके बाद हम एक स्टेटमेंट बोलते हैं, बताना ट्रू फॉल्स. रीड करके गो अहेड देना. वर्चुअल क्लास स्टूडेंट्स, आई वांट यू टू रिमेन ओपन विद योर कैमरा ऑलवेज. मुझे ऐसे बिल्कुल नहीं पता चलता कि हम लाइव हैं भी कि हमारा इंटरनेट बंद हो गया. रिस्पॉन्स आप लोग करते नहीं हो, फिर वो गलत बात है. कैमराज ऑन करके बैठो सारे.
पढ़ा? क्या ये रेपिटेटिव लग रहा है कि कुछ डिफरेंस है? चलो हम एक स्टेटमेंट बताते हैं, हम एक स्टेटमेंट बोल रहे हैं, बताना ट्रू फॉल्स। पढ़ लिया प्रिंसिपल नंबर 8 एंड 9 सबने वर्चुअल क्लास? अच्छा, हम एक स्टेटमेंट बता रहे हैं, ट्रू फॉल्स। आप लोग टी या एफ टाइप कर देना और आप लोग आंसर बताओगे। डू आई साउंड करेक्ट? ट्रू फॉल्स। एम आई करेक्ट इन बिलीविंग दैट प्रिंसिपल नंबर 8 विच सेज associate study influence of structure and climate specifically of Pleistocene epoch to understand landform feature will be different from principle number 9 which also reads influence of climate, as principle number 8 is in the temporal historical perspective and principle number 9 is in present perspective. True, false? पढ़ लो एक बार, फिर से पढ़ लो। अभी समझा रहे हैं प्लेस्टोसीन। चलो हम इस क्वेश्चन को डिले कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों को प्लेस्टोसीन से डाउट हो गया, तो चलो इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन अभी डिलेड है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। रुक जाओ जरा, ध्यान से सुनो इधर। आप सबको पता है आइस एज, अभी हम बोलते बोलते रुके थे, हमने कहा पहुंच रहे हैं उस प्रिंसिपल पर बात करते हैं। वी ऑल आर अवेयर ऑफ आइस एज। आई एम रिपीटिंग, आई थिंक द क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड नाउ। ठीक है? लास्ट आइस एज वाज एक्सपीरियंस्ड some 1 million years ago, and the beginning of that 1 million years ago is Pleistocene epoch. तो Pleistocene epoch कब शुरू हुआ? 1 million years ago, और कब खत्म हुआ? 10,000 years before present. And 10,000 years before present क्या है शुरू? Cultural history, Paleolithic age. Yes or no? जब आप पैलियोलिथिक कल्चर पढ़ते हो अपने एंशिएंट हिस्ट्री में, डोंट यू रीड दिस स्टेटमेंट इन योर एनसीईआरटी दैट अर्ली ह्यूमंस वर अडैप्टिंग टू द ग्रेजुअली वार्मिंग अप क्लाइमेट? क्योंकि जब लास्ट आइस एज खत्म हुआ तब वी स्टार्टेड इवॉल्विंग होमो सेपियंस। अब तो खैर हमने डिस्कार्ड कर दिया, आर एंसेस्टर्स कैन नॉट बी एप्स। चल रहा है ना सारा हिस्ट्री, इतिहास बदलने का काम, तो ये साइंटिफिक इतिहास भी बदला जा रहा है। But we all are aware of the fact that there is the evolution process which cannot be discarded. डार्विन के evolution concept को आप सिर्फ एक political motive के साथ discard नहीं कर सकते हैं. It is something which is very prominently proven and cannot be discarded for sure. So homos marked their genesis on the face of the earth 2 million years ago. But homos were not early humans. They were the first stage of evolution from apes to humans. तभी हम कहते हैं ना ह्यूमन ज्योग्राफी की शुरुआत होती है यहां पर। तभी हम कहते हैं होमोज मीन्स बाइपेडल होमोनिड्स, बाइपेडल 2 legs, होमो हैबिलिस हैबिचुअल, थंब अलग होना हैंड का, होमो इरेक्टस स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रेट होना, लीडिंग टू होमो सेपियंस। सो होमो सेपियंस इवॉल्व्ड व्हेन 10,000 years बिफोर प्रेजेंट। आ रही है बात समझ में? सो वाई प्लेस्टोसीन एपॉक इज मोर हिस्टोरिकल डोमेन। ऐसे करके जज करो, कलर चेंज करते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ जियोलॉजी एंड क्लाइमेट एसेंशियली रिलेटेड टू प्लेस्टोसीन एपॉक। प्लेस्टोसीन में हुआ आइस एज, प्लेस्टोसीन के खत्म होते होते आइस एज खत्म हो गया। तो ऐसे करके इसको इमेजिन करो, दिस इज माई लैंड। खाली एकदम सिंपल सा ट्विस्ट वाला डायग्राम बना रहे, एक पॉइंट प्रूव करना चाह रहे। सो ऐसा सोच कर देखते हैं। येलो कलर इज शोइंग ड्यूरिंग आइस एज। सो ड्यूरिंग प्लेस्टोसीन आइस एज, will it be that my mean sea level will be lower than the present mean sea level? आइस एज का मतलब क्या? आइस एज का मतलब मेजर पार्ट ऑफ एरिया और अ बिग कंसिडरेबल पार्ट ऑफ एरिया इज कवर्ड विद स्नो एंड आइस। इसका मतलब अब्लेशन हो नहीं रहा। अब्लेशन नहीं होगा तो मीन सी लेवल तो रिड्यूस होगा ही ना। मीन मीडियन मोड, मीन सी लेवल इज मीन एवरेज ऑफ हाई एंड लो टाइड। मीन सी लेवल से ही आप किसी भी एरिया की हाइट या डेप्थ मेजर करते हो। हिमालयाज, माउंट एवरेस्ट, मरियाना ट्रेंच। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो मीन सी लेवल ड्यूरिंग आइस एज इट शुड बी लो। आइस एज टर्मिनेट हो गया। आइस एज टर्मिनेट हुआ तो क्या हुआ? अब्लेशन। अब्लेशन से क्या होगा?
making it with green color. Rise in mean sea level, post ice age. Do you agree to it? इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला एरिया जो ड्यूरिंग आइस एज वॉज बीन वर्कड अपॉन बाय एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, अब तो सबमरीन हो गया. Yes or no? So please read principle number 8. To fully interpret topographical features, we need to take into consideration geological structure and climate in association to Pleistocene epoch. आई बात समझ में? Yes all of us. और प्रिंसिपल नंबर 9 को पढ़ो. For the complete appreciation of topographical features, complete knowledge of climate of world should be there. फिर से हमारा क्वेश्चन अभी तक आंसर नहीं हुआ, ट्रू फॉल्स बताना है. एम आई करेक्ट इन सेइंग कि फेस वैल्यू पर सिमिलर लुकिंग प्रिंसिपल 8 and 9 सिमिलर नहीं है. 8 इज मोर अबाउट पास्ट टेंस, 9 इज मोर अबाउट प्रेजेंट. भाई कनाडा में कौन सा प्रोसेस काम करेगा? ग्लेशियर. इजिप्ट में कौन सा प्रोसेस काम करेगा? विंड. इंडिया में कौन सा प्रोसेस डोमिनेंटली काम कर रहा है? रिवर. विल आई बी इन द पोजीशन ऑफ इंटरप्रेटिंग इट विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ द क्लाइमेट? ना. आई बात समझ में? यस और नो? कम ऑन क्लास, वर्चुअल क्लास, रीड इट वन मोर टाइम. बी वेरी क्लियर. दोनों लग रहे हैं सेम, सेम है नहीं. ये किस कंटेक्स्ट में है? पास्ट. ये किस कंटेक्स्ट में है? प्रेजेंट. और ये आ गया ना रेपिटेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स दैट वी हैव डन, कि व्हाई देयर इज डिफरेंट एजेंट वर्किंग इन डिफरेंट एरिया, क्योंकि डिफरेंट क्लाइमेट है ना भाई. अलग अलग क्लाइमेटिक लोकेशन में अलग अलग एजेंट्स वर्क करेंगे, एंड दैट इज द रीजन वी डेवलप कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फीचर्स. 0 to 10 गोल पोस्ट है कि क्या क्लैरिटी हुई है? 0, 1, 2, 3, 4, 10 में हमें मार्क्स दे दो. कितने मार्क्स मिले हमें समझाने के लिए? चलो ये तो फिर वो वाला काम हो गया, जय मोदी हर हर मोदी, हमें नहीं चाहिए. ठीक वाला आंसर दो. समझ में आया? आ गया. वर्चुअल क्लास स्टूडेंट्स, दिस इज ग्रेट. और हमें जब मिलता है ना डेसिमल वाला नंबर तो हमें ज्यादा अच्छा लगता है. डेसिमल वाला नंबर मतलब थोड़ा सा जेन्युइनली सोच रहे हैं. हमें मिल रहा है 6.5, 9.5. चलिए गुड. अब हम लिख रहे हैं लास्ट प्रिंसिपल नंबर 10, और उसके बाद क्विकली रेपिटेशन पर जाएंगे. हमारा आज का टारगेट हो गया यहां पर. नंबर 10, जियोमॉर्फिक स्टडीज. जियोमॉर्फिक स्टडीज though is principally concerned with present day landforms. Present day landforms. डैश डाल के लिखो. अब आया क्रक्स ऑफ द प्रिंसिपल. इट डू कंसिडर एक्ज्यूम्ड टोपोग्राफी. टर्म याद आ रहा है? एक्ज्यूम्ड टोपोग्राफी. ब्रैकेट में लिख लो पैलियोजियोमॉर्फोलॉजी. पैलियोजियोमॉर्फोलॉजी. जल्दी से स्कॉलर का नाम अटेम्प्ट करो. एक्ज्यूम्ड टोपोग्राफी इज वन ऑफ द 5 टोपोग्राफी गिवन टू अस बाय डैश. शाबाश, हॉरबर्ग. एंड हॉरबर्ग का कंट्रीब्यूशन हमने किस प्रिंसिपल के साथ एसोसिएट किया? कॉम्प्लेक्सिटी इन द फिनोमेना एंड प्रोसेसेस इज मोर कॉमन देन सिंप्लिसिटी इन एवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म. यस और नो? अच्छा ध्यान से देखो, हम लार्जली कंसर्न्ड है टर्शरी रिलीफ से, क्योंकि वो एंडोजेनेटिक फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है. बट टर्शरी रिलीफ इज नॉट सिनोनिमस टू ऑल रिलीफ. Influence of geological structure and climate of Pleistocene epoch has got a sound imprint on topography. So we should consider it. I cannot
understand the imprint of the different processes if I don't have understanding of present day world climate. And principle number 10, as many of you are asking me to repeat, principle number 10 क्या बोलता है? ये बोलता है, बड़ा पॉपुलर टॉपिक है हमारे सिलेबस का, समझाते समझाते क्विकली डायग्राम बना दे रहे, फिर मार्कर को थिक कर लेंगे. ये वाला डायमेंशन को रहने देते हैं. ये सरफेस पर एक वोल्केनिक माउंट बनाकर मैग्मा इंजेक्शन कर दिया. ठीक है. लास्ट प्रिंसिपल, एज जियोमॉर्फोलॉजिस्ट वी आर एसेंशियली कंसर्न्ड विद प्रेजेंट डे लैंडफॉर्म. मार्कर को थिक कर रहे हैं और मार्कर को डिफरेंट बना दे रहे हैं. We are essentially concerned with present day landform. मतलब इस डायग्राम में I am concerned with what? This active volcanic mount. Mount सही टर्म है, कोनिकल है, अपलैंड है, माउंट बोलना चाहिए ना? Yes or no? माउंट है, ये volcanic माउंट है. So as geomorphologist I am concerned with present day landform, but I cannot ignore जानते हैं यस और नो क्या बना दिया इतनी जल्दी 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 जल्दी? प्लूटॉन्स, इंट्रूसिव वोल्केनिक फीचर्स. ये एग्ज्यूम्ड हैं, ये बरीड हैं, फिर भी हम क्यों पढ़ते हैं भाई वोल्केनिज्म में? क्योंकि बिल्कुल हो सकता है कि बैथोलिथ, स्टॉक, डाइक, सिल, लैपोलिथ एंड लैकोलिथ, लैकोलिथ डोम शेप्ड, लैपोलिथ सॉसर, सिल हॉरिजॉन्टल, डाइक वर्टिकल, बैथोलिथ मैसिव प्लूटॉन, ये बने तो इंटीरियर्स ऑफ द क्रस्ट में, पर अगर आप इरोड करके अनकवरिंग कर दो तो will they be adding to topography? Yes, they can. Are you understanding it? और जो एक बड़ा पॉपुलर एग्जाम्पल है हाई वेल्ड, साउथ अफ्रीका में, घाप प्लाट्यू भी बोलते हैं, हाई वेल्ड भी बोलते हैं. इट्स अ प्लाट्यू ऑफ साउथ अफ्रीका. छोड़ दो नाम को, इट्स अ प्लाट्यू ऑफ साउथ अफ्रीका. मतलब आप साउथ अफ्रीका एज अ टूरिस्ट गए तो आपको ये बताया जाएगा ये प्लाट्यू रीजन है. तो देखने में तो प्लाट्यू है, टेबल लैंड है, पर वो है क्या? इट इज एक्सपोज्ड लैकोलिथ. So we as geomorphologists are essentially concerned with present day topography, but we should not be ignorant about exhumed ones. और यही डोमेन किसका आ जाता है? पैलियोजियोमॉर्फोलॉजी. 6 + 4 ऐसे करके रिवाइज करना. 6 बड़े इंपॉर्टेंट हैं, 4 कौन कौन से हो गए? टर्शरी, प्लेस्टोसीन, नॉलेज ऑफ क्लाइमेट एंड एक्ज्यूम्ड टोपोग्राफी. माइनर है, टेल एंडर्स है. मजा आया? समझ आया? यस और नो? वर्चुअल क्लास अभी हम कुछ भी नहीं लीफलेट्स दे रहे, हमें देना ही नहीं. अभी हम क्या चाह रहे हैं, जो आप लिख रहे हो ना क्लास नोट्स पे, बस उसको पढ़ो. कल आपको बोला एनसीईआरटी चैप्टर 1 पढ़ो, आज आप सिर्फ यही वाले क्लास नोट्स को पढ़ना. क्योंकि जब हम जियोमॉर्फोलॉजी की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहला जो हैंडआउट आपके पास आएगा वो यही आएगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी. पर उस समय हम क्लास में टाइम नहीं डिवोट करते कि चलो आज पढ़ते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स. वो तो जैसे जैसे जिस प्रोसेस के साथ आता है वहां वहां हम ऐड करते हुए चलते हैं. आर वी कंफर्टेबल? वी विल बी कंटिन्यूइंग ऑन विद अनदर इंपॉर्टेंट बेस क्लास pertaining to climate tomorrow, and then we'll proceed to the human geography before we eventually begin on. It is purposefully to create out the foundation क्योंकि हमारे पास टाइम है और ये कहीं से भी वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है. ये मिथ अपने दिमाग से निकाल देना. ठीक है? ओके, डन फॉर टुडे. बाय बाय, सी यू टुमारो. गुड नाइट. आप लोग के क्वेश्चंस के लिए वेट कर रहे हैं वर्चुअल क्लास. अच्छा, एक और बात, ये लेकर आए तो दिखा दें, फिर भूल जाएंगे. मॉर्निंग क्लास में भूल गए, लेकर आए थे तो भी. ये स्कूल एटलसेस अब कल से कोशिश करो कि सबके पास रहे.
मेरे पास 3rd एडिशन है, एंड इफ आई एम इन्फॉर्म्ड करेक्ट 4th एडिशन मार्केट में, अभी हम जानबूझ के जरा कैमरा पर दिखा रहे हैं, आप लोगों को दिखा रहे हैं. इट इज ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट्स एटलस फॉर इंडिया. ये दूसरा ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस नहीं है. आई डू अंडरस्टैंड कि आप लोग अपने जनरल स्टडीज के लिए ओरिएंट ब्लैक स्वॉन स्कूल एटलस लेते हो. आई एम नॉट डिस्कार्डिंग दैट एटलस, बट आई एम इंसिस्टिंग कि ये एटलस आप लोग के पास हो क्लास में. 4th एडिशन मेरे पास पुराना वर्जन है. क्यों? क्योंकि आपके लिए पेपर 2 में मैप मार्किंग है, और जितनी इंडियन मैप का इंफॉर्मेशन इस एटलस में है वो कहीं और नहीं है. तो हम बिना एटलस के, आज भी कई बार बोला ना, हेमर्जले ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, मैप बुक होता तो कहते फटाफट खोलो जरा देखो, ये रहा हेमर्जले, ये रहा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज. क्योंकि ज्योग्राफी इज अबाउट स्पेस एंड आई नीड टू सी इट. सो लेट अस बिगिन टू कैरी ऑन द एटलस फ्रॉम टुमारो. ठीक है, चलो बाय बाय. यही है तो बहुत बढ़िया. ओल्डर वर्जन है तो भी बहुत बढ़िया, मत खरीदो नया, लेकिन कोशिश करो कि ये रहे, बिकॉज सिमिलैरिटी रहेगी तो ज्यादा आसान रहेगा ना. ओपन दिस पेज एंड वी आर गोइंग थ्रू इट. आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन वर्चुअल क्लास स्टूडेंट्स. हमारा थैंक यू कहां पर है? ये सारी चीजें हम सिखाएंगे आपको. जाओ भागो, गुड नाइट. अरे ब्यूरोक्रेसी में बहुत काम आती है बच्चों, सीख जाओ पहले दिन से ही. Waiting for your questions. I have been given thank you here. Question नहीं है कुछ भी. चलो bye bye. See you tomorrow. Good night. Take care. बोलो बोलो बोलो. मैम जैसे एग्जाम्पल से आपके प्रिंसिपल समझ आ गए, लेकिन एग्जाम्पल से टेक्निकल टर्म्स मैं करेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ. मत करो मत करो मत करो. एक बात बताओ, आप, मुझे नहीं समझ में आया टर्म रेजुवनेशन, पर मुझे ये बात समझ में आई कि कोई भी लेवलिंग टास्क को कभी भी कोई एंडोजेनिक फोर्स इंटरप्ट तो कर सकता है. कि भाई हिमालय, अगर अरावली को 600 मिलियन ईयर्स हो गए, वो अभी तक पूरी तरह इरोड नहीं हुआ, तो अगर उसको इरोड करने के टाइम में आप उसको री अपलिफ्ट कर दोगे तो उसको क्या बोलेंगे? रेजुवनेशन. मुझे रेजुवनेशन नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, री अपलिफ्ट तो समझ में आ रहा है. दैट इज व्हाट. बाकी से टेक्निकल टर्म्स जैसे ये वॉल्केनिक के हो गए, फीचर्स वगैरह, जैसे ये मुझे अभी आइडिया नहीं है. कोई बात नहीं, आपको जो हम समझा रहे हैं क्लास में समझ में आ रहा है, बस वही चीज़ समझो. अभी इसके अलावा आपने कुछ पढ़ना भी नहीं.